नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ CISF ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 10% ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਿਟਪੁਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ G20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ OECD, UNESCO ਅਤੇ UNICEF ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि G20 के तहत शिक्षा मंत्रालय के लिए जो 4 मीटिंग्स आयोजित किए जाने हैं उसमें से दूसरा जो सेकंड वर्किंग ग्रुप है वो आज उसकी मीटिंग विगत 3 दिनों से यहाँ पर चल रही है। अमृतसर ऐतिहासिक शहर है। First and foremost, it's incredible to again continue to see the warmth and the hospitality of the Indian government for the G20 processes and our visits here, and for establishing a platform for cooperation, for discussion and solid camaraderie and multilateralism. We have had a very wonderful time here in Amritsar. We are very thankful for India's hospitality. It's very amazing. And also, especially the meetings have been very productive. I think it's been a great meeting, and I see a lot of positive attitude between all members. We all want to contribute and and find common solutions, because the thing is that lately we are facing so many common problems in many fields, of course, but in the field of education, and meetings like this can help us to share some valuable information. G20 ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੰਜੇ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ G20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ G20 ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਸ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੰਜੇ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। जैसा मैं बताया था कि हमने भी ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है और स्वयं प्लेटफॉर्म जो भारत सरकार की तरफ से पहल है डिजिटल एजुकेशन में, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी उनको से अवगत कराया है। तो उनका भी उसमें काफ़ी रुचि है कि इतनी लार्ज स्केल नंबर में हम ये कैसा डिलीवरी करा रहे हैं। और आपको ये ज्ञान होगा कि ये कोविड के दौरान ये पहल की है, और इस पहल की सफलता को देखते हुए हम आगे विश्वविद्यालय का भी प्रयास कर रहे हैं, जो इसकी और एक्सपैंड कर सकते हैं। और स्कूल शिक्षा में अभी तक जो जितने चैनल है उसको और बढ़ाते हुए 200 चैनल में लाके हर एक प्रदेश का भाषा में, हर एक सब्जेक्ट में, स्थानीय भाषा में उसको उपलब्ध करवाने का जो प्रयास किए हैं, इसका भी हम सब नेशंस को अवगत करा रहे हैं।
एक सवाल के जवाब में के संजय मूर्ति ने कहा कि छेती ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिस राही बच्चे अपना सारा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रख सकेंगे। हमारी इस फ्रेमवर्क में उसकी अकाउंटिंग फॉर होगी, उसकी जो मार्कशीट है या ट्रांसक्रिप्ट्स में उसमें पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ताकि उसका जो बच्चा जब भी फर्स्ट क्लास से लेके PhD जब करेगा उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो पूरा एक डिजी लॉकर में अवेलेबल रहेगा। सो जो भी रिक्रूटर है, जो भी एकेडमी इंस्टीट्यूशन है जिनको ये बच्चों को रिक्रूट करना चाहते हैं या एडमिशन देना चाहते हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंट होकर देगा। और ये सब एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन, एक यूनिक आईडी से। उन्होंने कहा कि अमृतसर विच मिले प्यार तो सारे मैंबर बेहद ही खुश नजर आए अते पंजाब की खुशबू नूं दुनिया भर विच फैलाउणगे। कैमरामैन फकीर चंद ते RP सिंह नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार। लोक सभा ते राज सभा विच रौले रप्पे दे चलदियां दोहां सदनां दी कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई है। सत्ता धिर वल्लों राहुल गांधी कोलों विदेश विच दित्ते गए बयान नूं लैके मुआफी दी मंग कीती गई, जिस दे विरोध विच विरोधी धिर दे मैंबरां ने दोहां सदनां विच नारेबाजी कीती। लोक सभा विच विरोधी धिर दे मैंबरां ने स्पीकर दी कुर्सी दे अग्गे आके नारे लाए। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेसी आगू राहुल गांधी नूं दित्ते गए बयानां लई बिना शर्त मुआफी मंगण लई कहा है। संसद के भवन के बाहर पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि राहुल गांधी नूं सदन के नियमां की जानकारी लैनी चाहिए। उन्हां राहुल गांधी वालों विदेश विच दित्ते गए बयान नूं निरा झूठ दस्सिया। आज मैं इतने कह सकता हूं, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर। ये क्या है कि आप झूठ बोले बाहर और यहां पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं। एक परिवार क्या सबसे बड़ा है? उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहां पर बोलने का मौका दे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा केंद्रीय बल CISF विच साबका अग्निवीरां लई 10% अहुदे राखे करन दा ऐलान कीता है। इस नाल अग्निवीरां नूं वध तो वध उमर हद विच छूट मिलेगी। साबका अग्निवीरां नूं सरीरक योग्यता टैसट विच भी राहत दित्ती जावेगी। सीमा सुरक्षा बल विच अग्निवीरां लई 10% राखवाकरण दित्ते जाने दा ऐलान कीते जाने दे कुछ दिनां बाद यह ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन अनुसार पहले बैच के अग्निवीर उम्मीदवारों की उपरली उमर हद विच 5 साल की छूट दी जाएगी, जबकि होरनां बैचां के उम्मीदवारों नूं उपरली उमर हद विच 3 साल तक की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने हथियारबंद बलों विच अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत की सी। इस योजना का मकसद 17.5 उमर वर्ग और 21 उमर वर्ग के विचकारले नौजवानों नूं 4 साल के पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट आधार ते हथियारबंद बलों विच शामिल करना है। इसकी कल्पना हथियारबंद बलों विच नौजवानों की गिनती वधाउण लई कीती गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहुदा संभालण मगरों नागरिकों की मनोदशा नूं बदलण लई कई कदम चुके ने। उन्हां धीआं दे मान सन्मान नूं यकीनी बनाउण लई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सद्दा दिता। इस सद्दे का लिंग अनुपात विच सुधार ते प्रतक्ख असर दिखाई देंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबका अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नाल एक ब्रॉडकास्ट साझा कीता अते बालड़ी बचाओ अते बालड़ी सिक्ख्या का सुनेहा दिता। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। उग्गी अभिनेत्री ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ और मैं अज इन्हां नाल काफ़ी लंबी चर्चा हुई। असी जल्दी ये प्लान आउट कर रहे हैं और माही जी जिस तरह हर वारी हर महीने लगभग ये पंजाब दिल्ली चाहते हैं, उन्होंने दियां फेरियां असीं प्लान करके पंजाब के अंदर भी ये पार्टी के काम नूं अगे वधांगे।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਮ ਵਿਖੇ ਚਿਲੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मौके संबोधन करदियां पंजाब के बागबानी बारे मंत्री चेतन सिंह जोड़े माजरा ने कहा कि राज विच लगभग 9920 हैक्टेयर रकबे विच 19,963 मीट्रिक टन हरी मिर्च का उत्पादन होंदा है। फिरोजपुर, पटियाला, मलेरकोटला, संगरूर, जलंधर, तरनतारन, अमृतसर, शहीद भगत सिंह नगर और हुशियारपुर प्रमुख मिर्च उत्पादन जिले ने। इन्हां विचों जिला फिरोजपुर विच सब तो वध 1700 हैक्टेयर विच मिर्चां की पैदावार हुंदी है। उन्हां कहा कि मिर्च की खेती 8000 तो वध लोकां नूं सिद्धे अते 16000 तो वध लोकां नूं असिद्धे तौर ते रोजगार प्रदान कर दिए। उन्होंने कहा कि हुण क्लस्टर बनने नाल किसानां दी मिर्च की फसल का मंडीकरण सफल ढंग नाल हो सकेगा अते उन्हां नूं वधिया मुनाफा भी होवेगा। भारत के सुतंत्रता संग्राम विच पंजाब के अणगोले देश भगतां दीआं कुर्बानियां के विषय ते 2 रोज़ा राष्ट्रीय सैमीनार जलंधर के लैलपुर खालसा कॉलेज में आयोजन किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च नवी दिल्ली के सहयोग नाल करवाए जा रहे सैमीनार की शुरुआत आज़ादी संग्राम के परवानियां दीआं तस्वीरां की प्रदर्शनी नाल की गई। इस प्रदर्शनी में सुतंत्रता संग्राम देश भगतां के जीवन बारे संखेप बारे जानकारी दी गई है। इस मौके वख-वख बुलारियां ने कहा कि आज़ादी संघर्ष विच पंजाब का बहुमुल्ला योगदान है अते अकादमिक जगत इस सैमीनार तो जरूर नवी सेध लवेगा। ते नाल ही खबरां दा बुलेटिन इत्थे खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।